Hey everyone, my topic is DNA damages and DNA repair mechanism and all the methods which are used in DNA repair. So what is DNA damage? Due to physical, chemical and environmental agents, DNA are damaged, broadly classified into four categories. Single base alternation meaning conversion of like cytosine to uracil. It is conversion of single base. It is because of depurination or deamination. Two base alternation like pyrimidine dimer like T bond to T, it is pyrimidine diamond. Chain breaks. It is because of ionizing radiation and cross linkages between bases. Cytosine get deamidated to form uracil. When amine group is removed from cytosine, it form uracil and adenine form hypoxanthine. And when amine group is removed from adenine, it form hypoxanthine. Spontaneous depurination. Due to cleavage of glycosyl bond, it connect purine to the backbone. Depurination meaning removal of purine base like adenine and guanine due to cleavage of glycosyl bond that connect purines to the backbone. The depurinated site are called as abasic site. The site जहाँ पे adenine and guanine हट जाते हैं उस sites को हम बोलते हैं abasic sites. Next is they were detected in purines and called apurinic site, which represent lack of purine. They were detected in purines and are called apurinic site क्योंकि purine हट जाएगी तो उसको apurinic site मतलब कि वहाँ पे purine नहीं होगा. The term AP site is generally used to represent any base lacking in DNA. apurinic site का मतलब कोई भी base जो है lacking in DNA है. The production of reactive oxygen species is often associated with alternation of bases. Example, formation of hydroxyguanine, 8-hydroxyguanine. Free radical formation and oxidative damage to DNA increase with advancement of age. Free radical formation and oxidative damage. Oxidative damage meaning damage in presence of oxygen to DNA increase as age increases, advancement of DNA is also increases. Ultraviolet radiation result in the formation of covalent link between adjacent pyrimidines along the strand to form pyrimidine dimer. DNA chains break can be caused by ionizing radiations like X-rays. Ultraviolet radiations result in the formation of covalent link between adjacent pyrimidine along the DNA strand to form pyrimidine dimer. Like ultraviolet radiation जैसे ही आएगी जो कि pyrimidine like TN में dimer बन जाएगा एंड डाइमर बनने के बाद इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी. इसके अलावा आयनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्सरे भी क्या करती है डीएनए के चैन को ब्रेक कर देती है. तो एक टाइप से क्या कर रही है म्यूटेशन कर रही है डीएनए को डैमेज कर रही है. तो म्यूटेशंस क्या होता है म्यूटेशन का मतलब होता है चेंज इन डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ ए जीन. म्यूटेशन रेफर्स टू ए चेंज इन द डीएनए स्ट्रक्चर ऑफ ए जीन. म्यूटेशन रेफर टू द चेंज इन डीएनए जो डीएनए का स्ट्रक्चर लाइक CGAT एंड जो भी उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो जाना वो सब्सटेंस वो केमिकल जो म्यूटेशन कोज करते हैं उनको हम बोलते हैं म्यूटाजेंस. The substance chemicals which can induce mutations are collectively known as mutagens. The changes that occur in DNA on mutation are reflected in replication, transcription and translation. वो changes जो जैसे DNA में change आएगा तो ऑफकोर्स ही बात है. इफ आई टेक एग्जाम्पल AGTC था और यहाँ पे C की जगह U हो जाएगा तो सेम का सेम आरएनए के अंदर भी चेंजेस रहेंगे. जब ट्रांसक्रिप्शन होगी डीएनए से आरएनए बनेगा एंड सिमिलरली जब आरएनए से प्रोटीन बनेगा सारे के सारे चेंजेस रहेंगे. तो कितने टाइप की म्यूटेशंस होती है. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूटेशंस. टू मेजर टाइप्स. वन इज पॉइंट म्यूटेशन. अगर सिंगल पॉइंट पे म्यूटेशन हो रही है तो फ्रेम शिफ्ट मतलब पूरा पूरा फ्रेम ही चेंज कर देगी. पॉइंट म्यूटेशन का मतलब है द रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेस पेयर बाय अनदर रिजल्ट इन पॉइंट म्यूटेशन. द रिप्लेसमेंट ऑफ वन बेस पेयर. एक बेस पेयर का अनदर बेस पेयर से चेंज हो जाना जैसे कि एडेनिन की जगह हाइपोजेंथिन आ जाना. तो फिर सिमिलरली एक बेस पेयर का चेंज हो जाना उसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन. अब इसके दो टाइप्स है एक आता है ट्रांजिशंस एक होता है ट्रांसवर्जन. इसके अंदर क्या होगा प्यूरिन और पिरिमिडिन दूसरे से रिप्लेस हो जाएगा. ट्रांसवर्जन का मतलब क्या होता है कि रिप्लेसमेंट हो जाएगी जैसे कि AT था वो TA बन जाएगा. अब फ्रेम एंड पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन लाइक आप देख पा रहे हैं ट्रांजिशन के अंदर क्या हुआ
ट्रांजिशन में ए की जगह कुछ और आ गया, टी की जगह कुछ और आ गया, लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, इन्होंने आपस में अपनी पोजीशन चेंज कर ली, इट इज ट्रांसवर्जन। एंड इंसर्शन में क्या हुआ, कुछ ऐड हो गया, डिलीशन में क्या हुआ, कुछ डिलीट हो गया, तो इट इज फ्रेम, पूरा फ्रेम में अलग हो जाएगा। पॉइंट म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, एक होती है पॉइंट म्यूटेशन लाइक यू सी यू है, ये कोड करता है सीरिन के लिए। अब ये साइलेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ए सी ई है, ये कोड करता है थ्रीन के लिए, एंड यू ए है, ये टर्मिनेशन कोडोन है। अब इससे क्या हो रहा है, यू सी ए बन रहा है जो कि सीरिन के लिए कोड कर बन रहा है। साइलेंट म्यूटेशन होने से यू सी यू बन जाएगा जो कि सीरिन के लिए ही कोड करेगा। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या है, क्या परिणाम निकलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन के क्या परिणाम निकलेंगे। साइलेंट म्यूटेशन है, पॉइंट म्यूटेशन क्या है गाइस, साइलेंट म्यूटेशन भी हो सकती है। द कोडोन ऑफ एमआरएनए कंटेनिंग द चेंज्ड बेस में कोड फॉर द सेम अमीनो एसिड, जो कोड है एमआरएनए का जिसके अंदर क्या चेंज्ड बेस है, हो सकता है वो सेम अमीनो एसिड के लिए कोड करे। यूसीए कोड करते हैं सीरिन के लिए, चेंज हो जाएगा थर्ड बेस, तो किसके लिए कोड करेगा, सेम वो यू सी यू भी सीरिन के लिए चेंज करेगा। तो यहाँ पे जब म्यूटेशन हुई तो कुछ भी साइलेंट म्यूटेशन में कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। दिस इज ड्यू टू डीजनरेसी ऑफ द जेनेटिक कोड, देर आर नो डिटेक्टेबल इफेक्ट्स, यहाँ पे कोई भी डिटेक्टेबल इफेक्ट्स नहीं थे। तो मिस सेंस म्यूटेशन, इन दिस केस द चेंज्ड बेस में कोड फॉर ए डिफरेंट अमीनो एसिड। मिस सेंस में क्या होगा कि उसकी सेंस बदल जाएगी, जैसे कि यू सी ए था वो कोड कर रहा था सीरिन के लिए, लेकिन यू की जगह ए आ जाएगा तो ए सी कोड करेगा सीरिन के लिए, तो उसकी सेंस अलग होगी म्यूटेशन होने के कारण। तो मिस सेंस मिस्टेकन अमीनो एसिड में भी एक्सेप्टेबल, पार्शियल एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल विद रिगार्ड टू द फंक्शन ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल। और यही चीज़ होती है सिकल सेल अनीमिया के अंदर कि मिस सेंस म्यूटेशन हो जाती है, इससे प्रभाव पड़ता है। Next is nonsense mutation. The codon with the altered base may become a termination or nonsense codon. Change in the second base of the serine may result in UAA. जैसे यहाँ से C change हो जाएगा जो बन जाएगा UAA. The altered codon act as a stop codon. अब ये तो stop codon क्या act करे, nonsense से काम ही रुक जाएगा हमारा protein synthesis का। Frame shift mutations में क्या होता है guys? This occur when one or more base pair are inserted or deleted from the DNA respectively causing insertion or deletion mutation। फ्रेम शिफ्ट का मतलब कि पूरा फ्रेम में अलग हो जाएगा। हो सकता है हम कुछ 3 मेंबर थे ACA, अब मैंने यहाँ पे टी और डाल दिया तो ये हो गया इंसर्शन, फ्रेम अलग हो गया ना, 3 से 4 का हो गया। अब ये 3 मेंबर थे मेरे स्टार्टिंग में, ए से ए मैंने डिलीट कर दिया तो ए हो गया। तो फ्रेम शिफ्ट गाइस 2 टाइप का होगा, एक होगा इंसर्शन, एक होगा डिलीशन। इंसर्शन में कुछ ऐड करेगा, डिलीशन में कुछ माइनस कर देगी। नेक्स्ट है consequences of frame shift mutation. The insertion or deletion of a base in a gene result in an altered reading frame of the mRNA. The insertion or deletion of a base in a gene result in an altered reading फ्रेम फ्रॉम द RNA। अब जैसे उसके अंदर डिलीशन इंसर्शन हो जाएगा तो mRNA क्या करेगा, गलत रीड करेगा। तो mRNA क्या करेगा, अगर mRNA गलत रीड करेगा तो प्रोटीन भी गलत बनेगा। द मशीनरी mRNA containing codes does not recognize that a base was missing or a new base was added. No punctuation in the reading of codon's translation continues. The result is that the protein synthesizes will have several altered amino acid or prematurely terminated proteins. नेक्स्ट आता है, अब म्यूटेशन हो गई, डीएनए खराब हो गया, अब डीएनए को ठीक करना है, रिपेयर करना है। अब आएगा डॉक्टर्स का, लाइक बेसिक एक्सिजन रिपेयर डॉक्टर का काम करेगा, न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर एंड डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर। तो सेल पोजेस एनी अनबिल्ट सिस्टम टू, सेल के पास क्या इनबिल्ट सिस्टम है, कुछ पास सिस्टम है ताकि वो रिपेयर कर सकता है डैमेज डीएनए को, लाइक बेस एक्सिजन रिपेयर, न्यूक्लियोटाइड एक्सिजन रिपेयर, मिसमैच रिपेयर एंड डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर। बेस एक्सिजन रिपेयर में क्या होता है, जो बेस साइटोसिन एडेनिन एंड ग्वानिन है, अब ये क्या होता है, अंडरगोइंग डीप्रोनेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है, तो साइटोसिन से बन जाता है गाइस यूरेसिल, एडेनिन से हाइपोजेंथिन एंड ग्वानिन से जेंथिन बन जाता है। अब अल्टर्ड बेस होगी, अब ये तो नॉर्मल डीएनए में एग्जिस्ट कर नहीं सकते, नहीं कर सकते, तुम्हारा डीएनए खराब हो गया, इन्हें रिमूव करना पड़ेगा। तो दिस अल्टर्ड बेस डज नॉट एग्जिस्ट इन द नॉर्मल डीएनए एंड देयरफॉर नीड टू बी रिमूव्ड। दिस इज कैरी आउट बाय द बेस एक्सिजन रिपेयर। तो बेस एक्सिजन रिपेयर में गाइस हुआ क्या, सबसे पहले तो कुछ चेंजेस होएंगे, लाइक सी की जगह हमारे पास यू आ गया, तो सबसे पहले डिफेक्टिव डीएनए हो गया, तो यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज एंजाइम है तो इसको निकाल देगा, निकालने के बाद एंडोन्यूक्लियस आएगा, इसको सील कर देगा, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, यहाँ पे नया एंजाइम को ऐड कर देगा। डिफेक्टिव डीएनए इन विच साइटोसिन इज डीएमिनेटेड, अब क्या होता है, साइटोसिन था वहाँ से अमोनिया निकलेगा, यूरेसिल बन जाएगा। A defective DNA in which cytosine is deaminated to
uracil is acted upon by the enzyme यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेस। अब यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेस क्या करेगा, ये आएगा रिमूवल कर देगा डिफेक्टिव बेसिल यूरेसिल का, और एंडोन्यूक्लियस क्या करेगा, कट कर देगा बैकबोन ऑफ डीएनए, डिफेक्टिव रिमूव हो जाएगा, कुछ बेसिस भी हो सकता है रिमूव हुए, फिर डीएनए पॉलीमरेज डीएनए लाइगेज आएगी, पॉलीमरेज सिंथेसाइज करेगा, उसको फिर जोड़ देगा। नेक्स्ट है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर, जिसको हम बोलते हैं नॉर। इसके अंदर क्या होगा गाइस, द डीएनए डैमेज ड्यू टू अल्ट्रावायलेट लाइट, इसमें डीएनए डैमेज हो रहा है अल्ट्रावायलेट लाइट के कारण हो सकता है। आयनाइजिंग रेडिएशन एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स रिजल्ट इन मॉडिफिकेशन ऑफ सर्टेन बेसिस स्ट्रैंड ब्रेक्स क्रॉस लिंकेजेस। न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर इज suited for large scale defects in DNA, altered the identification of defective piece of the DNA। इसके अंदर क्या होगा, आफ्टर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफेक्टिव पीस ऑफ डीएनए, देखिए न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर में क्या हो, सबसे पहले तो पहचानेंगे ये 3' 5' एंड है, 5' 3' एंड है, डिटेक्ट करेंगे एंड देन उसको रिमूव करेंगे। तो डीएनए डबल हेलिक्स इज अनबाउंड टू एक्सपोज द डैमेज पार्ट, जो डीएनए डबल हेलिक्स है सबसे पहले इसको अनबाउंड किया जाएगा, देन एक्सपोज किया जाएगा डैमेज पार्ट पे। The DNA double helix is unwound and exposed to damaged part। अब DNA डबल हेलिक्स से पहले अनबाउंड किया जाएगा, डबल हेलिक्स हमारा डीएनए जहाँ पर भी खराबी हो उसको अनबाउंड किया जाएगा। एक्सीजन न्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस, एक्सोन्यूक्लियस का मतलब क्या है, जो डीएनए आइदर साइड से उसको कट लगाएगा अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम से, जो डैमेज डीएनए पार्ट है। अब जो डिफेक्टिव पीस है उसको तोड़ दिया जाएगा, डिग्रेड कर दिया जाएगा। द गैप क्रिएटेड बाय द न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन इज फिल्ड up by the DNA polymerase which get ligated by the DNA ligase। अब क्या हुआ, डिफेक्टिव पीस को तो खराब कर दिया, अब गैप आएगा, उस गैप को जो सही न्यूक्लियोटाइड आने थे, डीएनए पॉलीमरेज आएगा, उसकी सिंथेसाइजेशन करेगा एंड देन उसको डीएनए लाइगेज के द्वारा जोड़ दिया जाएगा। एंड जीरोडर्मा पिगमेंटोजम, यू कैन सी न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर बाय दिस डायग्राम, कि कैसे अनबाउंड हुआ एंड देन कैसे कट हुआ, एंड हाउ डीएनए पॉलीमरेज गेट एडेड न्यू न्यूक्लियोटाइड्स एंड डीएनए लाइगेज जॉइन द डीएनए। Xeroderma pigmentosum, that is XP। Xeroderma pigmentosum is a rare autosomal recessive disease। The affected patients are photosensitive and susceptible to skin cancer। It is now recognized that ZP is due to a defective in the nucleotide oxygen repair of the damaged DNA। ये स्किन डिसीज है, इसका होने का बेसिक रीजन है कि जो न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर हो रहा था डीएनए के अंदर, उसके अंदर कुछ डैमेज और उसके अंदर कुछ खराबी हो जाना। इसके अंदर क्या होगा, इस पेशेंट को क्या होगा, जो ये पेशेंट होगा एक्सपी का, वो बहुत ज़्यादा फोटो सेंसिटिव होगा, और इतना फोटो सेंसिटिव होगा थोड़ी सी लाइट आता है उसको खतरा रहेगा स्किन कैंसर का। तो skin cancer is because of the damage in the defect in the nucleotide oxygen repair of the damaged DNA। नेक्स्ट इज मिसमैच रिपेयर, कि मिसमैच रिपेयर को कैसे ठीक करेंगे, डीएनए के अंदर कोई भी मिसमैच रिपेयर हो रहा है। डिस्पाइट हाई एक्यूरेसी इन रेप्लिकेशन, डिफेक्ट डू अकर व्हेन द डीएनए इज कॉपीड। रेप्लिकेशन के पास बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी है, बहुत ही अच्छे से रेप्लिकेट होता है, लेकिन फिर भी डिफेक्ट आ जाते हैं जब भी डीएनए की कॉपीड होती है। फॉर इंस्टेंस जैसे कि साइटोसिन, अब थायमिन की जगह साइटोसिन आ जाना, अब साइटोसिन आएगा तो फिर अब क्या होगा, साइटोसिन आएगा तो अब एडेनिन की जगह आना, तो एडेनिन के पास थायमिन आना चाहिए था, लेकिन आ क्या गया, साइटोसिन आ गया। तो मिस मैच हो गया ना, कि सी की बॉन्डिंग ए से हो रही है लेकिन होनी किससे चाहिए थी, टी की ऐसे होनी चाहिए थी। अब इस मिसमैच को रिमूव करना है तो होगा क्या, जो टेम्पलेट स्टैंड है, द टेम्पलेट स्टैंड ऑफ द डीएनए एग्जिस्ट इन ए मिथाइलेटेड फॉर्म while the newly synthesized strand is not methylated। जो टेम्पलेट स्टैंड होता है डीएनए का, जिसकी डायरेक्शन होती है 3' to 5', वो होता है मिथाइलेटेड, उसके ऊपर ऐड होता है मिथाइल ग्रुप। लेकिन जो नेक्स्ट स्टैंड होता है, न्यूली सिंथेसाइज स्टैंड होता है, जो इससे बनेगा, जो बनेगा 5' to 3', उसके ऊपर मिथाइल ग्रुप नहीं होता है। द डिफरेंस अलाउज द रिकॉग्निशन ऑफ द न्यू स्टैंड। अब इस डिफरेंस का हम पहचान सकते हैं कौन सा स्टैंड नया है, कौन सा स्टैंड पुराना है। तो इसे पता लग जाएगा जिसके ऊपर मिथाइल ग्रुप नहीं है वो क्या है, वो न्यू स्टैंड है। जो एंजाइम GATC एंडोन्यूक्लियस है, GATC एंडोन्यूक्लियस है, एंडोन्यूक्लियस मीनिंग द एंजाइम विच कट द stand at an adjacent methylated GATC sequence। The enzyme GATC endonuclease cuts the stand at an adjacent methylated GATC sequence। This is followed by an exonuclease digestion of the defective strand and its removal। एक नया डीएनए स्टैंड जो कि सिंथेसाइज्ड हुआ है डैमेज की जगह। हेरिडिटी नोन
पोलोलाइसिस, क्लोन कैंसर, हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब जो पास आउट हो रहा है। जो क्लोन कैंसर है सबसे ज़्यादा कॉमन इनहेरिटेड कैंसर है, और ये कैंसर लिंक्ड है फॉल्टी मिसमैच रिपेयर ऑफ डिफेक्टिव डीएनए। तो हमने अब तक यहाँ पे 2 टाइप के कैंसर पढ़ लिया। अगर मिसमैच रिपेयर के कारण हो रहा है तो क्लोन कैंसर हो रहा है, अगर स्किन कैंसर हो रहा है तो हो रहा है बेसिकली नॉट स्किन कैंसर, जीरोडर्मा पिगमेंटोसम जो हो रहा है वो हो रहा है न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर के कारण। तो दिस रिपेयर सिस्टम आर सो मच हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग डिसीज एंड कैंसर एंड सो मच लाइक आई कैन से डेट बहुत सारी जो रेडिएशंस है, बहुत सारी रेडिएशंस बहुत ज़्यादा हार्म कर रही है डीएनए में, लेकिन ये सारे के सारे डैमेज रिपेयर्स है। जो जितने भी हमारे पास डैमेज रिपेयर है डीएनए में, सबके सब हेल्प आउट कर रहे हैं कि डीएनए में डैमेज ना हो और हमारा डीएनए बचा रहे किनसे, सारी की सारी हार्मफुल रेडिएशन से, सारे हार्मफुल केमिकल से। तो हुआ क्या, सबसे पहले तो एंडोन्यूक्लियस ने कट कर दिया, उसके बाद एंडोन्यूक्लियस ने कट किया तो एक्सोन्यूक्लियस आया, उसने क्या किया, डाइजेशन कर दिया डिफेक्टिव स्ट्रैंड का, उसको रिमूवल कर दिया, फिर एक नया डीएनए सिंथेसाइज्ड होगा डैमेज की जगह। अब डैमेज वाला सिंथेसाइज नहीं होगा, अब नया डीएनए सिंथेसाइज्ड होगा। अब जो नया डीएनए सिंथेसाइज होगा बिल्कुल सही होगा, एंड जो भी हार्मफुल प्रोसेस होने वाली थी वो नहीं होगी। उसके बाद हमने अब तक टोटल 3 पढ़ लिए है। एक पढ़ा हमने बेस एक्सीजन रिपेयर, नेक्स्ट हमने पढ़ा है न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर, उसके बाद हमने पढ़ा मिसमैच रिपेयर। बेस एक्सीजन बिल्कुल सिंपल था, जो भी बेस है उसको टाके लगा दो। न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस लगानी थी जो हमने पढ़ा जीरोडर्मा पिगमेंटोसा में स्किन कैंसर है। मिसमैच रिपेयर हमने पढ़ा क्लोन कैंसर, बिकॉज अगर सही से ना तो क्लोन कैंसर हो सकता है। नेक्स्ट हमारा आई थिंक सो लास्ट वन है डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर। डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर, double stent breaks, that is DSBs, are dangerous. They result in genetic recombination which may lead to chromosomal translocation, broken chromosomes, and finally cell death. They result in genetic recombination which lead to chromosomal translocation, broken chromosomes, and finally cell death. Double stent break repair can be repaired by homologous recombination or non-homologous and joining. Homologous recombination occur in yeast, while in mammals, non-homologous and joining dominates. तो गाइज अब तक हमने जो पढ़ी उसकी एक समरी है। मैकेनिज्म, डैमेज टू डीएनए, डीएनए रिपेयर। सबसे पहले बेस एक्सीजन रिपेयर, इसके अंदर डैमेज होता है सिंगल बेस में। डैमेज का रीजन रहता है स्पॉन्टेनियस अल्टरनेशन हो रहा केमिकल और रेडिएशन के कारण। अब रेडिएशंस कोई भी रेडिएशन हो सकता है, यूवी डेट में भी एक्सरे और एनी काइंड ऑफ रेडिएशन, जो क्या करेगी सिंगल बेस में डैमेज कर देगी, और सिंगल बेस के डैमेज को रिमूव किया जाएगा बाय एन ग्लाइकोसाइलेज, अ बेसिक शुगर रिमूव्ड रिप्लेसमेंट। नेक्स्ट है हमारा न्यूक्लियोटाइड ऑक्सीजन रिपेयर, जिसमें डैमेज टू सेगमेंट ऑफ डीएनए बाय स्पॉन्टेनियस रेडिएशन रहेगा। इसके अंदर भी रिमूवल बाय डीएनए फ्रेगमेंट 10 मीटर लेंथ रिप्लेसमेंट होगी। मिसमैच रिपेयर, डैमेज ड्यू टू कॉपिंग एरर्स, इसमें डैमेज रहेगा कॉपिंग एरर ढंग से नहीं हो रही है, बेस अनपेयर्ड लूप्स है। रिमूवल ऑफ द स्टैंड बाय द एक्सोन्यूक्लियस, डाइजेशन एंड रिप्लेसमेंट। डबल स्टैंड ब्रेक रिपेयर, इसके अंदर क्या होगा, डैमेज होगा आयनाइजिंग रेडिएशन के कारण, फ्री रेडिकल्स एंड कीमोथेरेपी के कारण, अनबाइंडिंग अलाइनमेंट एंड लाइगेशन की, एक डीएनए से एक डीएनए से इनका कहीं पे लाइगेशन हो गई, ठीक है, इस टाइप से कुछ बन गया, तो डेट इज बिंग दिस। ओके, थैंक यू सो मच गाइस। रेफरेंस जो बुक है इसकी यू सत्यनारायण है। थैंक यू सो मच।